આજે 13મી સપ્ટેમ્બર મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ સૌનો આવકાર કરે છે। ગઈકાલના સફળ આરંભ પછી આપણે એક વિશેષ દિવસ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે। આજે આપણી સાથે વક્તા તરીકે કલકત્તાથી લતાબેન બોથરાજી છે। તમારો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે। ગઈકાલે સંસ્થા માટે પણ આર્થિક સહકાર આવવાનો પ્રારંભ થયો છે। શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘે આ વર્ષે અનુકંપા પ્રોજેક્ટ માટે વેડછી પ્રદેશ સેવા સમિતિ વાલોડની પસંદગી કરે છે। દર વર્ષે સંઘ આવી રીતે એક પસંદ કરી તેઓ જે સમાજ ઉદ્ધાર માટે કાર્ય કરે છે તેને પોતાનો સહકાર આપવા સમાજના શ્રેષ્ઠી માટે મદદ માંગે છે અને એક રકમ જમા કરી અને તેમને પહોંચાડે છે। ગુજરાતના અંતરાળ વિસ્તારમાં શિક્ષણ, આદિવાસી સમાજના ઉદ્ધાર, સ્ત્રી વિકાસ આદિ વગેરે કામ કરતી સંસ્થાને આપણે પસંદ કરીએ છીએ। તેથી આ વખતે ખૂબ જ મહેનત પછી ડૉક્ટર સેજલબેનની અથાક મહેનત પછી આપણે વેડછી પ્રદેશ સેવા સમિતિ વાલોડની પસંદગી કરી છે। ચિદાનંદજી કૃત એક સજ્જાઈ। વિષય વાસના ત્યાગો ચેતન, સાચે માર્ગ લાગો રે। વિષય વાસના ત્યાગો ચેતન, વિષય વાસના ત્યાગો ચેતન। तप जप संजम दानादिक सहु, गिणती एकन आवे रे। इंद्रिय सुख में जब लग ए मन, इंद्रिय सुख में जब लग ए मन, वक्र तुरंग जिम धावे रे। विषय वासना त्यागो चेतन, विषय वासना त्यागो चेतन। एक एक के कारण चेतन, बहुत बहुत दुख पावे रे। देखो प्रगटपणे जगदीश्वर, देखो प्रगटपणे जगदीश्वर, इण विध भाव लिखावे रे। विषय वासना त्यागो चेतन, विषय वासना त्यागो चेतन। मन मत वश मातंग जगत में, परवशता दुख पावे रे। आचार्य बुद्धिसागर सूरीजी रचित एक पद। हमने ध्यान पतंग उड़ाया, हमने ध्यान पतंग उड़ाया। उल्टी अखियां से देखत हम सुरता तान लगाया। उल्टी अखियां से देखत हम सुरता तान लगाया। हमने ध्यान पतंग उड़ाया, हमने ध्यान पतंग उड़ाया। अनुभव ज्ञान की डोरी लंबी, उसका पार न पाया।
अनुभव ज्ञान की डोरी लंबी उसका पार न पाया। आत्म गगन में ऊंचा उड़ता, आत्म गगन में ऊंचा उड़ता, आनंद लहरे सुहाया। हमने ध्यान पतंग उड़ाया, हमने ध्यान पतंग उड़ाया। श्रुत ज्ञान का दीपक बांध के बुद्धि प्रकाश बढ़ाया। श्रुत ज्ञान का दीपक बांध के बुद्धि प्रकाश बढ़ाया। बुद्धि सागर सूरी केवल ज्ञान की, बुद्धि सागर सूरी केवल ज्ञान की, ज्योति में ज्योति समाया। हमने ध्यान पतंग उड़ाया, हमने ध्यान पतंग उड़ाया, हमने ध्यान पतंग उड़ाया। હવે હું બકુલભાઈને આજના વક્તાનો પરિચય આપવા આમંત્રણ કરીશ, પરંતુ એ પહેલાં આજે આપણે એક વિશેષ જાહેરાત કરવાના છીએ. હું ડૉક્ટર સિજલબેનને વિનંતી કરીશ કે 2023ના ભદ્રંકર વિજય જ્ઞાનદીપક એવોર્ડ 2016થી સીકે મહેતાના સૌજન્યથી શરૂ કરેલ છે એ એવોર્ડની આજે જાહેરાત કરવા આગળ પણ આવે. શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ માટે આજે ખૂબ જ આનંદનો અવસર છે. છેલ્લા 5 કે 6 વર્ષથી આદરણીય અને જેમને જૈન સમાજના ભામાશા કહેવાય છે સીકે મહેતા સાહેબની દોરવણી, માર્ગદર્શન અને એમના આર્થિક સહકારને કારણે આપણે શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘમાં દર વર્ષે ભદ્રંકર જ્ઞાન વિજય એવોર્ડ આપતા હોઈએ છીએ. શ્રી ભદ્રંકર વિજય જ્ઞાન દીપક એવોર્ડ જે છે તે એવોર્ડ વર્ષ દરમિયાન જૈન શાસનમાં જેમણે સંશોધનનું કાર્ય કર્યું છે, જેમણે જૈન ક્ષેત્રે સાહિત્યના અને જૈન તત્વના ક્ષેત્રે પ્રસારનું કાર્ય કર્યું છે અને જૈન શાસનની ખૂબ મોટી સેવા કરી છે એવી વ્યક્તિઓને અપાતું હોય છે. હાલમાં જ ગયેલી ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે સીકે મહેતા સાહેબે જ્યારે આ વિશ્વમાંથી શરીર દેહે વિદાય લીધી ત્યારે શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ માટે એક ક્ષણ અઘરી હતી, કારણ કે એમના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે લોકો અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરતા. ત્યારે નક્કી કર્યું કે સીકે મહેતા સાહેબ સ્ત્રી શક્તિને હંમેશા સન્માન આપતા હતા અને આ વર્ષે શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘે નારી રત્નો જેમને જૈન શાસનમાં કામ કર્યું છે એવા નારી રત્નોને પસંદ કરવા અને આ વર્ષે જ સાહેબે વિદાય લીધી એને કારણે પણ અમે લોકોએ આ વર્ષે 2 નારી રત્નોને એવોર્ડ આપવા એવું ઠરાવ્યું. એક રીતે એ કાર્ય અમારે સીકે મહેતા સાહેબને અંજલિ આપતા હોઈએ એ રૂપે લેવું હતું. આ વર્ષનો એવોર્ડ 2 બહુ જ અનોખી વ્યક્તિઓને મળી રહ્યો છે. એક વ્યક્તિ છેક કલકત્તા છે અને કેટલા વર્ષોથી શાંતિથી પોતાનું કામ કરે છે. એમનું વ્યાખ્યાન આપ હમણાં થોડીક વારમાં સાંભળવાનો છો અને એમનો પરિચય પણ આપને હમણાં જ પ્રાપ્ત થવાનો છે. પરંતુ જૈન શાસનના, જૈન સાહિત્યના, જૈન તત્વના એક રિસર્ચ સ્કોલર જેમને કહીએ છીએ એમાં આગવી હરોળમાં એમનું નામ લેવાય છે અને એ વ્યક્તિ છે ડૉક્ટર લતા બોથરા. શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ અને દીપક ફાઉન્ડેશન બંનેના સહકારથી આ વર્ષનો શ્રી ભદ્રંકર વિજય જ્ઞાન દીપક એવોર્ડ જે 2 વ્યક્તિઓને આપવાનો છે તે પૈકી એક એવોર્ડ આપણે ડૉક્ટર લતાબેન બોથરાને આપવાનું જાહેર કરીએ છીએ. લતાબેન, આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આપના સંશોધનનો લાભ શાસનને સદા મળતો રહે
અને એક ભવિષ્યની દોરવણી મળતી રહે. હું લતાબેનને આપણે જે એવોર્ડ આપી રહ્યા છીએ એ એવોર્ડમાં જે લખાણ છે તે આપની સમક્ષ વાંચી રહી છું. It is with immense pride and pleasure that Shri Mumbai Jain Yuvak Sangh and Deepak Foundation confers Shri Bhadrankar Vijay Gnan Deepak Award for the year 2023 to Dr. Lata Bothra, a towering leader and a scholar of Jainism. Lataben, you have contributed immensely through your research in field of Jain archaeology, history of Jainism, Jain literature as well as culture. Your profound insight in diverse areas like Ashtapat and Jain archaeological heritage in region of Kolkata and Odisha etc. will serve as a true north star for the future generation. You have devoted yourself and worked tirelessly to bring the four true meaning of Jainism. We truly cherish your contribution. Lataben, we are very happy to honor you with this award. Thank you. Now I will request our Vice President Bakul Bhai to introduce today's speaker, Lataben Bothra ji from Calcutta. Thank you. શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘની 89મી વ્યાખ્યાનમાળાના આજે બીજા દિવસે બુધવાર તારીખ 13/9/2023ના આપણા વક્તા છે ડૉક્ટર લતાબેન બોથરા. તેમનો વિષય છે ગૌતમ ગણધર યા બુદ્ધ. ડૉક્ટર લતાબેન બોથરા એકેડેમિકલ ક્વોલિફિકેશનમાં MA વિથ પોલિટિકલ સાયન્સ, PhD એન્ટિક્વિટી ઓફ જૈનિઝમ અને ડૉક્ટર ઓફ લિટરેચર બેંગાલ કા જૈન પુરાતત્વ ધરાવે છે. તેમના કાર્યમાં તેઓ તીર્થયાત્રિયારા હિન્દીમાં એડિટર છે, જૈન જર્નલ ઇંગ્લિશ ક્વાર્ટરલીના એડિટર છે, શ્રમણ બેંગાલીના એડિટર છે. તેઓએ 16 ક્રિએટિવ રાઇટિંગ કરેલી છે, 48 બુકો એડિટ કરી છે અને 86 આર્ટિકલ્સ લખ્યા છે. તેઓ જૈન ચેર ઇન ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓરિએન્ટલ હેરિટેજ ધરાવે છે અને જૈનિઝમમાં PhDના સ્ટુડન્ટ્સોને એસિસ્ટ કરે છે. તેઓએ 3 ડોક્યુમેન્ટરી વિડીયો ફિલ્મ્સ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર, જૈન હેરિટેજ ઓફ અનડિવાઇડેડ બેંગાલ અને અષ્ટપદ ધ ઓરિજિનલ સોર્સ ઓફ કલ્ચરમાં ભાગ લીધેલ છે. ડૉક્ટર લતાબેનને વિનંતી છે કે એમનો વ્યાખ્યાનનો આરંભ કરે. अंगूठी अमृत वसे लब्धि तड़ा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता श्री मुंबई जैन युवक संघ के अध्यक्ष श्री दिलीप भाई शाह, मंत्री श्रीमती सेजल बहन एवं सभी पदाधिकारियों का मैं अभिवादन करती हूँ और 2023 के व्याख्यानमाला के अंतर्गत मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ. आज का जो व्याख्यान है उसका विषय है गणधर गौतम स्वामी. और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सभी तीर्थंकरों के गणधर होते थे और आदिनाथ ऋषभदेव जो श्रमण संस्कृति के सूत्रधार थे उनके 84 गणधर में इसी तरह अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, जिनमें प्रमुख और प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी थे. भगवान महावीर से प्रवचन ग्रहण करने का गौतम स्वामी का जो वृत्तांत है वो बहुत ही रोचक है. गौतम स्वामी वैदिक धर्म के प्रकांड विद्वान और देशांतर में बहुत ही प्रसिद्ध थे. और जब वो स्वामिल की यज्ञशाला में अपापा नगरी में यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा एक यज्ञ का आयोजन उन्होंने किया और वहाँ पे वो यज्ञ कर रहे थे. उस समय उन्होंने देखा कि देवी देवता विमान से आ रहे हैं. तो उन्होंने समझा कि वो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो उसी में वो देवी देवता आ रहे होंगे. लेकिन जब उन्होंने देखा वो आगे निकल गए तो उनके मन में ये शंका हुई, जिज्ञासा हुई कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, उससे भी कौन ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके पास ये लोग जा रहे हैं. तो जब उन्होंने खोज किया तो उन्हें पता लगा कि वो लोग भगवान महावीर के समावसरण में जा रहे हैं. तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वो मुझसे भी अधिक विद्वान हैं. ये जिज्ञासा पूरी करने के लिए उसी समय अपने
500 शिष्यों के साथ महावीर के संवत्सरण में गए, देखें वो कैसे विद्वान हैं। और जैसे ही संवत्सरण के प्रमुख द्वार पर वो पहुँचे, उसी समय भगवान महावीर ने कहा, आओ गौतम। और वो आश्चर्यचकित रह गए। और उसके बाद कैसे उनका नाम वो पहचानते हैं, जानते हैं कि गौतम उनका गोत्र था और उनका वास्तविक नाम था इंद्रभूति। और उसके बाद भगवान महावीर ने उनको जो वेदों के विषय में जो जीव के विषय में, सोल के विषय में जो लिखा हुआ था, उसमें उनको जो भ्रम था वो उसको दूर किया, उनकी शंका का समाधान किया भगवान महावीर ने। और उसके बाद वो उनसे प्रभावित होकर प्रवजित हो गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि गौतम स्वामी भगवान महावीर के सबसे पहले शिष्य बने। और इसका वर्णन हमें श्रीमद् पुराण में भी मिलता है। श्रीमद् पुराण में लिखा हुआ है, यद्यपि उसमें काफ़ी अतिशयोक्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी उसमें लिखा है कि भगवान महावीर के पास गौतम, जो कि वैदिक विद्वान थे, उन्होंने प्रवज्ञा ली थी। अब इसी समय एक और व्यक्तित्व हमें साहित्य में मिलता है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में शाक्य मुनि बुद्ध का, तो जिनको भी गौतम बुद्ध कहा जाता है। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, शाक्य मुनि कौन थे और गौतम स्वामी कौन थे? दो अलग अलग व्यक्तित्व थे और जिनका साहित्य में नाम आता है। शाक्य मुनि बुद्ध का गौतम बुद्ध के नाम से हम लोग उन्हें जानते हैं, और गणधर गौतम स्वामी जो भगवान महावीर के परम शिष्य थे, उनका वर्णन हमारे जैन साहित्य में है। और लेकिन दोनों साहित्य में एक दूसरे का वर्णन नहीं आता, जबकि दोनों प्रकांड विद्वान माने जाते थे। तो इस विषय में प्रोफेसर H.S. विल्सन ने अपने ग्रंथ रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ हिंदूज में लिखा है, जो कि एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित हुआ था 1832 में। उसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि प्रोफेसर विल्सन ने ऑब्जर्वेशन किया कि जब महावीर का when Mahavira's fame began to be widely diffused, it attracted the notice of the Brahmins of Magad। तब जब उनका प्रभाव बहुत ही विस्तारित हुआ, तो मगध के जो ब्राह्मण थे उन्हें भय सताने लगा। उनके प्रभाव को कम करने के लिए एक शाक्य मुनि, जिनका संग बहुत ही छोटा था, उनको उनके प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए उनको ही गौतम बुद्ध बना के प्रस्तुत किया। लेकिन ये बिल्कुल मान्य नहीं था। और आगे वो लिखते हैं, दिस इज पर्टिकुलरली केस विद द फर्स्ट इंटरप्रेटी ऑफ गौतम हु हैज बीन कंसीडर्ड एज द सेम विद द गौतम ऑफ द बुद्धस द सन ऑफ शतोधना एंड माया देवी। आगे उन्होंने लिखा है दैट एनी कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द जैन्स एंड ब्राह्मण सेज इज एट लीस्ट वेरी डाउटफुल। But the Gautam of the Buddhas, the son of Shadotana and Maya, was a Kshatriya, a prince of the royal or warrior caste. All the Jain traditions make their Gautam a Brahmin, originally of the Gotra of or tribe of the Gautam Rishi, a division of Brahmins well known and still existing in south of the India. इसलिए ये दोनों पर्सन, दोनों व्यक्तित्व कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि शाक्य मुनि एक क्षत्रिय वंश के शाक्य जाति के राजकुमार थे, और जबकि गौतम स्वामी व इंद्रभूति जो गौतम गोत्र के ब्राह्मण थे। अतः दोनों को एक मानना नहीं चाहिए। और यही ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, यही मेरे इस संशोधन का विषय है, जिसके निष्कर्ष मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैन और बौद्ध धर्म के भेद को दर्शाते हुए पंडित नीलकंठ शास्त्री ने उड़ीसा में जैन धर्म पुस्तक के प्रीफेस में लिखा है कि जहाँ एक ओर इसमें कठोर साधना और कर्म में अति निष्ठा का निषेध होता है, वहीं दूसरी ओर
भोग की यथेच्छाचारिता और अति सुंदरता का भी निषेध है। और मुनि का यही धर्म जैन और बौद्ध है। सम्राट अशोक ने सिर्फ इसी बौद्ध धर्म के नाम से संस्कारित जैन धर्म को स्वीकार किया था। और इसी तरह इंडियन रिलीजियस बुक में लिखा है द जैन ओरिजिनली प्योर बुद्धिस्ट। एक बात और हम देखते हैं दोनों परंपराओं में जैन, बुद्ध और अहद तीनों शब्दों का प्रयोग हमें मिलता है दोनों परंपराओं में। और जहाँ पर भारत के बाहर विशेषकर तिब्बत और चीन में हमें ये हर किसी ज्ञानी को, चाहे वो कम ज्ञानी हो या बहुत ज्ञानी हो, दो सबको वहाँ बुद्ध कहने का प्रचलन है। शिष्य, गुरु सभी को बुद्ध कहते हैं। वहाँ पर डिसाइपल बुद्धा, गुरु बुद्धा और वो तत्व ज्ञानी या ऑर्डिनरी बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, इस तरह वहाँ सभी को बुद्ध कहने का प्रचलन है। और एक बात और है जो महावीर के अनुयायी, यद्यपि आज अनेक मतों में हम लोग बट गए हैं और अलग अलग आचार्यों की परंपरा में जो श्रावक हैं उनके लिए अपने आचार्य के उपदेश ही सर्वोपरि होते हैं। और पास से देखें तो यह अंतराल समझ आ जाता है, लेकिन जब हम समय के अंतराल के बाद दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि ये सब अलग अलग परंपरा के हैं। चीनी परिव्राजक फायान पेंगझांग किस बुद्ध की खोज में भारत आए थे, ये बहुत भ्रम पैदा करता है, क्योंकि उनके वर्णनों में जब फायान 400 साल पहले आए तो उन्होंने कहा था कि वो बुद्ध उनसे 1497 वर्ष पूर्व में, यानी 1097 ईस्वी पूर्व। इसी प्रकार पेंगझांग ने कुछ कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध का निर्माण 1500 वर्ष पहले हुआ, और कुछ कहते हैं कि 1200 वर्ष पहले हुआ, और कुछ कहते हैं कि 500 वर्ष पहले हुआ। तो इस तरह इनके जो वर्णन हैं ये भी हमें बहुत प्रमित करते हैं। और भारत से जो हजारों की संख्या में ये लोग ग्रंथ ले गए और उसका उन्होंने वहाँ चीनी भाषा में अनुवाद किया, उसका पुनः अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। और इनके वर्णों से ये भी पता चलता है कि प्रारंभिक अवस्था में एक जैसा था वो कालांतर में इन विदेशी परिव्राजकों और वैदिक ब्राह्मणों के कारण अलग अलग प्रतीत होने लगा। जैन और बौद्ध साहित्य में दोनों में वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध को समसामयिक बोला गया है, लेकिन एक ही समय में दोनों एक ही नगर में उपस्थित रहते हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं मिलते हैं। जैसे गृहपति उपाली तथा 80 वंदक पुत्र ब्राह्मणी के प्रसंग पर दोनों नालंदा में थे, प्रसंग पर दोनों वैशाली में थे। अभय कुमार प्रसंग पर दोनों राजगृह में थे, लेकिन दोनों के परस्पर मिलने या वार्तालाप का कोई वर्णन हमें नहीं मिलता, जो ये जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि इसका क्या कारण रहा हो। तिब्बती साहित्य का अध्ययन करने से जब हम वहाँ पर गए कैलाश में लासा होकर के, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में हमें एक किताब मिला गांवकारिक त्याशी, जिसका अर्थ है वाइट कैलाश। इस संबंध में कुछ विवरण हमें मिले जिससे मेरे इस गौतम बुद्ध और महावीर के आपस में वार्तालाप को स्पष्ट करते हैं। तिब्बती साहित्य का अध्ययन करने पर हमें वहाँ पर 25 बुद्धों का वर्णन मिलता है। 25वां बुद्ध गौतम को माना गया है, और जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों का वर्णन भी मिलता है जो बुद्ध भी कहे जाते हैं। साहित्य में गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरे पहले 24 बुद्ध हो चुके हैं। अतः ये बहुत ही विवादास्पद प्रश्न खड़ा होता है। और इसी संदर्भ में हमें तिब्बती साहित्य में कामकारिक त्याशी नामक किताब में श्रमण सनातन परंपरा के आदिनाथ ऋषभदेव के अलावा इसमें बाहुबली, भरत, भगवान महावीर का वर्णन मिलता है, और गौतम और महावीर की समकालीनता भी इसमें दर्शाई गई है, और उनके परस्पर वार्तालाप होते थे, इसका भी वर्णन मिला है। इसमें लिखा है बिफोर बुद्धा इन दिस रीजन जैन्स वर हियर, दिगंबर
जैन को चेरपूपा कहते थे। जो दूसरे दिगंबर लोग थे, नर्मसंत थे, वो शरीर में मिट्टी का लेप करते थे। और अदर जैन्स जो कि कपड़े पहनते थे वो उसके बाद में आए। और वहाँ पे बुद्धिज़्म के पहले जैन धर्म था। सबसे पहले वहाँ पे 24 तीर्थंकर थे, और जिनके फर्स्ट तीर्थंकर का नाम खोचु या ऋषभनाथ या ऋष्यनाथ लिखा है। द लास्ट गॉड नेम भगवान महावीर का नाम शिरबा कहते हैं वहाँ प्रभु को। और लॉर्ड महावीर और लॉर्ड बुद्धा आर इन सेम पीरियड, और बोथ हैड इंटरेक्शंस डिस्कशंस अबाउट रिलीजन। और इस संदर्भ में स्पेंसर हार्डी मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म में लिखते हैं कि अवर लेटर authorities contributes many curious items and suggestive coincidences, tending more fully to establish the fact that Buddhism was substantially an offshoot of Jainism. हमारी परंपरा में एक बहुत पूर्ण परंपरा का निर्वाह आज भी देखने को मिलता है कि जब कोई आचार्य किसी बड़े नगर में चातुर्मास करते हैं तो उसी नगर के अन्य स्थानों पर उनके प्रमुख शिष्य भी प्रवचन देते हैं। प्रभु महावीर जब राजद्रय के गुणशील चैतन्य में प्रवचन देते हैं तो उनके प्रमुख शिष्य गौतम सुधर्मा स्वामी भी नगर के अन्य स्थानों पर प्रवचन देते हैं या पास के नगरों में प्रवचन देते हैं। सैनिक राजा महावीर के पास जाते थे, गौतम और सुधर्मा स्वामी के पास भी जाते थे। इसी प्रकार अजातशत्रु भी महावीर के पास जाते थे और सुधर्मा स्वामी और गौतम स्वामी के पास भी जाते थे। इसका उल्लेख साहित्य में भी हमें मिलता है। महावीर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी, वहीं उनके शिष्य गौतम और सुधर्मा स्वामी के प्रति भी सम्मान और भक्ति थी। यही कारण है तत्कालीन सभी राजाओं का वर्णन भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के प्रबल अनुयायी के रूप में मिलता है। लेकिन ये संभव नहीं है कि एक ही राजा दो विरोधी के एक ही समय अनुयायी बने। वर्तमान युग में भी अनेकों आचार्यों के अनुगामी अनेक श्रावक होते हैं। यद्यपि सब श्रावक सभी आचार्यों मुनियों को वंदन करते हैं, परंतु किसी विशेष आचार्य के प्रति उनकी भक्ति अधिक होती है। और शायद इसीलिए सैनिक, उद्योग, उद्यन आदि राजाओं को दोनों परंपराएं अपना मानते हैं। भगवान महावीर से 250 वर्ष तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे, और उस समय के अधिकांश राजा एवं प्रजा, यहाँ तक कि शाक्य मुनि जिनको गौतम बुद्ध कहते हैं, उनके परिवार की पार्श्व परंपरा का अनुयायी था। बुद्ध चरित्र में भी यह स्पष्ट होता है। गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति की पूर्व पार्श्व परंपरा में से वो प्रभावित रहे। मध्यम निकाय के महापरिवार सूत्र में ये कहते हैं कि सारी बुद्धि प्राप्त करने से पूर्व में दाढ़ी मूछ का लुंजन करता था, मैं खड़ा रहकर तपस्या करता था, उनको बैठ कर तपस्या करता था, मैं नंगा रहता था, लौकिक आचार्यों का पालन नहीं करता था, हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था, बैठे हुए स्थान पर आकर दिए हुए अन्न को, अपने लिए तैयार किए हुए अन्न को और निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करता, गर्भणी और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों से भी मैं भिक्षा नहीं लेता था। तो ये समस्त आचार जैन साधुओं का था जिसे गौतम बुद्ध पालन करते थे। इतिहास का राधा प्रमोद मुखर्जी का कहना है कि वास्तविक बात यह ज्ञात होती है कि बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के लिए उस काल में प्रचलित दोनों साधनों का अभ्यास किया था। अनार और उद्धव के निर्देशानुसार ब्राह्मण मार्ग का और तपजीन मार्ग का ग्रंथ गौतम स्वामी भी पहले वैदिक धर्म तथा यज्ञ आदि क्रियाकांड में विश्वास रखते थे और बाद में महावीर के संपर्क में आकर जैन संस्कृति के अनुयायी बने। 8वीं शताब्दी में देवसेनाचार्य ने अपने दर्शन शास्त्र में लिखा है कि जैन श्रवण पीताश्रव ने सरयू नदी के तट पर पलाश नामक ग्राम में ही पार्श्वनाथ के संग में उन्हें दीक्षा दी थी और उनका नाम मुनि बुद्ध की रखा गया था। त्रिपिटक साहित्य में निर्कलनाथ बुद्ध को चतुर्यामी संवरवादी बताया गया है जो पार्श्वनाथ से संबंधित था, महावीर से नहीं।
प्राचीन श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर के निर्माण के बाद आर्य सुधर्मा को भगवान महावीर का प्रथम पट्टेधर नियुक्त किया गया था, गौतम स्वामी को नहीं। लेकिन दिगंबर संप्रदाय गौतम स्वामी उनके पाठ पर मानती है। गौतम स्वामी के संग में उनके शिष्यों के अलावा पार्श्वनाथ के संघ के साथ उनका विदय हुआ था और श्रावस्ती में ही, जो कि गौतम बुद्ध का बहुत प्रिय स्थान माना जाता है, वहाँ पर ही केशव मुनि के साथ गौतम स्वामी का संवाद हुआ था और उसके बाद उनका संग महावीर के संग में मिल गया था, जो बाद महावीर के निर्वाण के बाद पुनः गौतम स्वामी के संग में जिसका विलय हो गया। केशव कुमार तथा अन्य पार्श्ववर्ती मुनि कालवेश्य पुत्र, गांगेय का विठल पुत्र, उदक आदि भी तत्व चर्चा के बाद महावीर के संग में आ गए थे, जो बाद में गौतम के संग में रहे। पार्श्वनुयायियों का गौतम स्वामी के संग में सम्मिलित होने का दूरगामी प्रभाव यह पर पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि पर्वतीय काल में कमठ उपसर्ग न्यूजीलैंड लाभ के रूप में बुद्ध चरित्र में जोड़ दिया गया और गौतम बुद्ध के साथ इस घटनाक्रम का जोड़ना पाश्चात्य से उनके संबंधों को और भी पुष्ट करता है। इस संदर्भ में मनमथनाथ शास्त्री ने लिखा है, हिज लाइक हिज टीचिंग्स हिज ऑर्डर में लिखते हैं कि 2 of 11 disciples of Mahavir survived him, Sudharma and Gautama. Sudharma's spiritual successors are the Jain priests, whether as the Gautam's followers are the Buddhists. प्राचीन बौद्ध साहित्य में जहाँ कहीं भी बौद्ध गौतम बुद्ध के चरित्र का वर्णन मिलता है, वहाँ सिद्धार्थ को गौतम नाम कब दिया गया, क्यों दिया गया, इसका कोई युक्ति संगत उल्लेख मुझे नहीं मिला। अशोक घोष के बुक चरित्र में लिखा है कि उनका गोत्र गौतम था, इसलिए उनको गौतम कहा गया, जबकि गणधर गौतम स्वामी ही अपने गोत्र के नाम से प्रसिद्ध थे, अपने वास्तविक नाम इंद्रभूति के नाम से नहीं। भगवान महावीर भी उन्हें गौतम कहकर पुकारते थे। सिद्धार्थ का गोत्र नाम गौतम नहीं था। अशोक घोष के बुद्ध चरित्र में गौतम का गोत्र गौतम बताना एक महत्वपूर्ण प्रमाण है कि शाक्य मुनि को गौतम गोत्र के नाम से कहा गया, जबकि उनका ये गोत्र नहीं था। वो लिखते हैं कि जब वो सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन के लिए जाते हैं तो रास्ते में 5 भिक्षुक उनको मिलते हैं और उन्हें गौतम के नाम से संबोधित करते हैं। बुद्ध बैठे रहे भिक्षुओं की ओर बढ़े, जिन्होंने इस तरह अपने विचार स्थिर किए और जैसे जैसे उनके समीप गए वैसे वैसे वे अपना निश्चय भी तोड़ते गए जो उन्होंने दृढ़ किया था, और एक ने उनका जीवन ग्रहण किया, उसी प्रकार दूसरे ने हाथ जोड़कर उनका भिक्षा पात्र ग्रहण किया, तीसरे ने उन्हें उचित आसन दिया, उसी प्रकार अन्य 2 ने पाँव धोने को जल दिया। इस प्रकार से उनकी परिचर्या करते हुए सबने उनसे गुरुवत व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने उन्हें गोत्र नाम से पुकारना नहीं छोड़ा। ये अशोक घोष के बुद्ध चरित्र में सर्ग 15 में धर्म चक्र प्रवर्तन के समय ये दृष्टांत हमें मिलता है। इसी प्रकार राहुल जी ने भी बुद्ध चर्या से अपनी किताब में इसी प्रकार का दृष्टांत दिया है, और इससे यह स्पष्ट होता है कि गौतम स्वामी ही बुद्धत्व प्राप्ति के बाद लोगों में गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। भगवान महावीर के बाद उन्होंने जहाँ भी विचरण किया, बुद्ध बनने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद, वहाँ वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, और उन्हीं गौतम बुद्ध की खोज में जो विदेशी विद्वान भ्रमणकारी परिव्राजक भारत आए, भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, और वो 12 वर्षों में कहाँ गए, इसका कोई कहाँ उनका चतुर्मास हुआ, इसका कोई वर्णन हमें नहीं मिलता। इसी संदर्भ में कर्नल जेम्स टॉड ने अपने राजस के इतिहास के ग्रंथ में लिखा है कि स्कैंडिनेविया में जो गौतम गए थे वो महावीर के गणधर गौतम थे, और यह जरूरी कि उनको ये संदर्भ अवश्य कहीं से मिला होगा, क्योंकि महावीर के शिष्य में गौतम स्वामी ही रिद्धि सिद्धिदायक और लब्धिमान थे, और उन्होंने अष्टपथ की यात्रा भी की थी, और अष्टपथ के बाद पीछे जो चाइना से सिल्क रूट जाता है उसमें उसके द्वारा ही वो
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गए थे, ऐसा उनका मानना है। वो तो जैन शब्द का एक ही अर्थ होता है, और जब वाराणसी जाते समय वो उपक आजीवक से वार्तालाप करते हैं तो वो स्वीकार करते हैं कि वो एक जैन है। और यह आश्चर्य का विषय है कि वेद वेदांत के प्रख्यात आचार्य, जिन्होंने अध्ययन पूर्ण करने के बाद 5 वर्ष तक विभिन्न प्रदेशों में घूम घूम के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया हो, ऐसे ख्याति प्राप्त विद्वान जिनकी गाथा सभी दिशाओं में फैली हो, उनका वर्णन हमें बौद्ध साहित्य में क्यों नहीं मिलता। सम्राट अशोक के शिलालेख और भारतीय इतिहास का आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनके लघु शिलालेख नंबर 1 में, जो कि रूपनाथ, सहसाराम और बैराग में प्राप्त हुआ, उसमें लिखा है कि देवताओं के प्रिय इस बात को कहते कि 2.5 वर्ष से अधिक समय हुआ जब मैं उपासक हुआ, और मैंने अधिक उद्योग नहीं किया, किंतु 1 वर्ष से अधिक हुआ जब मैं संघ में आया हूँ, तब से मैंने अच्छी तरह से उद्योग किया। और इस बीच तो जो देवता सच्चे माने जाते थे उनको अब झूठा सिद्ध कर दिया गया है। यह उद्योग का फल केवल बड़े ही लोग पर पा सकें ऐसा नहीं है, क्योंकि छोटे लोग भी उद्योग करें तो महान स्वर्ग का पा सकते हैं। और यह अनुशासन मैंने उस समय लिखा जब बुद्ध भगवान के निर्माण को 256 वर्ष हुए थे। और इसी प्रकार का वर्णन हमें ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और रामेश्वर से मिले शिलालेखों में भी मिलता है। अशोक के शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने ये शिलालेख बुद्ध के निर्माण के 256 वर्ष बाद लिखवाया था, और ये शिलालेख उनके सिंहासन पर बैठने के 21 वर्ष बाद लिखे गए। और उस समय के मान्यता प्राप्त बुद्धों में भगवान महावीर, कुशालक, सारिपुत्र, गौतम स्वामी, शाक्यमुनि, सुधर्मा स्वामी आदि थे। प्रश्न यह उठा कि किस बुद्ध के निर्माण के बाद के 256 वर्ष बाद ये शिलालेख लिखे गए। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक 269 या 70 में गद्दी पर बैठे थे, और भगवान महावीर का निर्माण 527 ईस्वी पूर्व माना जाता, और उसके 12 वर्षों बाद गौतम स्वामी का 215 ईस्वी पूर्व तथा सुधर्मा स्वामी का भगवान महावीर के 20 साल बाद यानी 507 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शाक्य मुनि बुद्ध की निर्वाण तिथि का विश्लेषण कर मुनि नगराज और आचार्य हस्तिमल जी ने भगवत पुराण, वायु पुराण तथा बर्मी बौद्ध साहित्य का गहन अध्ययन कर 505 ईस्वी पूर्व बताया है, जो अशोक के शिलालेख में दिए गए विवरण से भी सही सटीक बैठता है। इसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथों से होती है, जहाँ निरंतर बुद्ध के निर्वाण का संवाद जब बुद्ध को मिलता है तो वो कहते हैं मैं अभी 2 वर्ष और जीऊंगा। और निकंदनाथ बुद्ध का यहाँ गोत्र अग्निवेशायन बताया गया है। तो अग्निवेशायन गोत्र तो भगवान महावीर का नहीं था बल्कि सुधर्मा स्वामी का था, और सुधर्मा स्वामी का निर्माण 507 ईस्वी पूर्व होता है, जबकि शाक्य मुनि बुद्धा का निर्माण उसके 502 ईस्वी पूर्व होता है। इस प्रकार अशोक के शिलालेख से भी यह तिथि बिल्कुल सही बैठती है, और ये विश्लेषण भी यही प्रमाण करता है कि शाक्य मुनि बुद्धा और गौतम स्वामी या गौतम बुद्ध अलग अलग 2 पर्सनैलिटी जिनका अलग अलग समय निर्माण हुआ। अशोक के रोमन स्तंभ शिलालेख में हमें शाक्य मुनि का वर्णन मिलता है, लेकिन गौतम बुद्ध करके कहीं नहीं मिलता, जो ये स्पष्ट करता है कि गौतम बुद्ध और गौतम गंधर्व एक थे, लेकिन शाक्य मुनि अलग थे जिन्हें गौतम बुद्ध का नाम दे करके प्रस्तुत किया गया। अशोक की निगली सागर स्तंभ शिलालेख में कनक मुनि बुद्ध का वर्णन मिलता है, और ये कनक मुनि बुद्ध कौन थे? ऐतिहासिक विवरणों से पता चलता है कि ये पाश्चात्य संप्रदाय की परंपरा के मुनि थे, और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अशोक के समय जो संघ का उल्लेख मिलता है वो शायद पार्श्व परंपरा का था। अशोक के शिलालेखों में हमें आजीवकों का नाम मिलता है, निर्गंथों का नाम मिलता है, ब्राह्मणों का नाम मिलता है, और एक संघ को दान देने का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये सब किसका है ये स्पष्ट नहीं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें पीपरवा के स्तूप
से मिलती है। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है और यह शिवलिंग शाक्य होने के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें देता है, जिसके अनुसार शाक्य मुनि का नाम सुकीर्ति था और उनका गोत्र आदित्य। पर्वतीय जैन साहित्य में उन्हें बुद्ध कीर्ति कहा गया है और यह स्तूप उनके भाई बहनों द्वारा बनवाया गया। गौतम का नाम इंद्रपुति था, गोत्र गौतम, अतः शाक्य मुनि को गौतम कहना युक्त नहीं हो सकता। इस स्तूप के अंदर जो लिखा है उसके अनुसार भगवान शाक्य वंशीय सुकीर्ति के लिए उनके भाइयों बहनों बालकों और स्त्रियों ने स्थापित किया। इस स्तूप के अवशेष और भस्म कलश लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अंगुत्तर निकाय व ललित विस्तार में लिखा है कि जब बुद्ध राज बह गए तो राजा शैनिक ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। तब बुद्ध ने कहा, हे राजन, यहाँ से सीधे हिमालय की तलहटी में कौशल देश में एक जनपद है और उसका गोत्र आदित्य है और जाति शाक्य। उस कुल से कामुक भोगों की इच्छा छोड़ मैं परिव्राजक बना हुआ। और यह उल्लेख भी इसी बात की पुष्टि करता है कि शाक्य मुनि को ही पर्वतीय काल में गौतम बुद्ध कह के प्रस्तुत किया गया, जबकि गौतम स्वामी और शाक्य मुनि बिल्कुल तो अलग अलग व्यक्तित्व थे। कश्मीर के इतिहास में कवि कल्हण द्वारा लिखित राजतरणी जो ऐतिहासिक ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसमें भी गौतम बुद्ध का जिक्र बौद्ध धर्म के संदर्भ में नहीं आता, बल्कि वहाँ पर बौद्ध धर्म के संदर्भ में शाक्य सिंह का वर्णन मिलता है। तथा भगवतः शाक्य सिंहस्य पत्नी प्रते अश्विन वही रूढ़ा तो सार्धवर्ष शतम हैगा। ये प्रथम तरफ में श्लोक नंबर 172 में ये दृष्टांत किया हुआ है। अवदान ग्रंथ में शाक्य मुनि की वे माता गौमती कहती हैं, मैंने देवदहा नगर में जन्म लिया। मेरे पिता अंजन शाक्य और मेरी माता सुलक्षणा है। फिर मैं सयानी होने पर कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के घर गई। यह कथन सिद्ध करता है कि शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध अलग थे और इस बात से यह भी स्पष्ट होता है शाक्य मुनि को ही गौतम बुद्ध के नाम से महावीर के प्रतिस्पर्धी के रूप में उनके प्रभाव को बौंध करने के लिए खड़ा किया गया। खारवेल के शिलालेखों में कलिंग जिन का उल्लेख मिलता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन के इतिहास से, वैदिक पुराणों से एवं उड़ीसा के कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जगन्नाथ की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा उड़ीसा के संबलपुर में गौतम बुद्ध द्वारा कराई गई थी। जगन्नाथ यानी ऋषभदेव, और वहाँ प्रतिष्ठा करने के बाद उन्होंने जगन्नाथ चरित्र की रचना की। यही कलिंग जिन की प्रतिमा नंद राजा द्वारा कलिंग को जीत कर मगध ले जाकर प्रतिष्ठा की गई और दूसरी शताब्दी ईस्वी में खारवेल जो जैन धर्मी थे, उन्होंने मगध पर विजय प्राप्त कर पुनः कलिंग में उसको प्रतिष्ठापित किया। बाद में वर्तमान जगन्नाथ मंदिर के मूलनाय के रूप में वो स्थापित हुए। आज भी जगन्नाथ मंदिर के अहाते में 2 तीर्थंकर प्रतिमाएं उत्कीर्ण परिलक्षित होती हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर ही कलिंग जिन का मंदिर है। 6वीं और 7वीं शताब्दी वहाँ जब जैनियों पर अत्याचार होने लगे, तब बड़ी संख्या में जैनों ने वहाँ से पलायन किया और वे नेपाल, तिब्बत और दक्षिण चीन में जाकर बसे और वहाँ पर अष्टपद क्षेत्र का नाम संभल देकर वहाँ संबलपुर के नाम को जीवंत रखा। और यही संभल आज पर पश्चिम जगत के शंभाला के नाम से प्रसिद्ध है। गौतम स्वामी ने जब अष्टपद की यात्रा की थी तो वहाँ कंडरिक का पुंडरिक चरित्र की रचना की थी। जगन्नाथ मंदिर में पूजा की परंपरा जैन विधि से संपन्न होती है। प्रसाद बनाने में जमीकंद का उपयोग नहीं जाता और मुंह पर कपड़ा बांधकर प्रसाद बनाया जाता है। तो आदि तीर्थंकर ऋषभदेव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा यदि वो बौद्ध धर्म के होते तो वो नहीं करते। अतः ये सिद्ध होता है कि ऋषभदेव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा गणधर गौतम स्वामी ने कराई थी और वहाँ पर उन्होंने जगन्नाथ चरित्र की रचना की थी। बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध से पूर्व जैन
24 स्थिर बुद्धों का उल्लेख मिलता है, उनमें कई नाम तीर्थंकरों के हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों चीन, कंबोडिया, बर्मा, वियतनाम आदि में स्थिर बुद्ध धर्म का प्रचलन होने के कारण वहाँ पर तीर्थंकरों की पूजा प्रचलित है। बौद्ध धर्म में तीर्थंकरों का उल्लेख और उनकी उपासना यह सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की एक शाखा है, और धर्मानंद कौसम्बी ने अपने वर्णन में भी यही लिखा है कि बुद्ध धर्म पार्श्वनाथ संघ से निकला है। मैगस्टिक के वर्णनों में भी हमें बौद्ध धर्म का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वहाँ पे शमन और ब्राह्मण दो धर्मों का उल्लेख है, लेकिन बौद्ध धर्म का अलग से कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसका अर्थ ये है कि वहाँ उस समय तक बौद्ध धर्म का कोई प्रभाव भारतवर्ष में नहीं दिखता था। अंगुत्तर निकाय के चक्र निपात में लिखा है कि शाक्यमुनि के चाचा बप्प शाक्य निगंध शावक थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में रचित ऋषिवाच्य ग्रंथ में 45 अरहंतों के विषय में वर्णन है, लेकिन उसमें शाक्य मुनि का उल्लेख नहीं मिलता और ना ही गौतम बुद्ध का। ये 4वीं शताब्दी में था, और इससे भी ये पता चलता है कि उस समय तक शाक्य मुनि का कोई प्रभाव नहीं था। महावीर के समय में अचेलक और सचेलक दोनों प्रकार के मुनि होते थे, और प्रचलित परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने के कारण मुनियों का एक दल दक्षिण में चला गया था। 12 वर्ष बाद अकाल समाप्ति पर जब वह वापिस आया तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो मुनि संघ था वह शिथिल हो गया था। कुछ विद्वान यहाँ से जैन धर्म की वो का मतभेद मानते हैं, परंतु पर्वतीय आचार्यों में ये मतभेद स्पष्ट नहीं होता। तब प्रश्न उठता है कि आचार्य स्थूलीपत्र को आगम की वासना क्यों करनी पड़ी और इसका क्या प्रमुख कारण था। 12 वर्षों बाद जब दक्षिण से जैन संघ वापिस आया तो उसने देखा कि अकाल के प्रभाव से शिथिल में पार्श्व परंपरा के मुनि जो गौतम स्वामी के संघ में सम्मिलित हुए थे, वे उनकी शिष्य परंपरा सुतनमा स्वामी के संघ की शिष्य परंपरा से अलग हो गए। अकाल समाप्ति के बाद मूल संघ में आने के बजाय उन्होंने एक नया संघ बना लिया, और यही संघ गौतम की परंपरा का होने के कारण गौतम बुद्ध संघ कहलाया। शाक्य मुनि इसी संघ में दीक्षित हुए थे और उनके नेतृत्व में संघ का प्रभाव बढ़ा था, इसलिए शाक्य मुनि को भी गौतम बुद्ध कहकर महावीर के प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़ा करने की चेष्टा की गई। इसी समय सुधर्मा स्वामी की परंपरा की साधुओं को अनुशासन में दृढ़ रखने के लिए आचार्य स्थूलीपत्र ने आगम सूत्र की वासना कराई। मान्य है कि मूल परंपरा से अलग निकली परंपरा मूल परंपरा को नष्ट करते या फिर उसे बदलकर स्वयं को स्थापित करती है, और यहाँ पर यह अपवाद नहीं है। इन सब प्रकरणों के विश्लेषण से गौतम स्वामी के चरित्र के 3 पहलू परिलक्षित होते हैं। पहला, वैदिक ऋषि के रूप में देशांतर में उनकी विद्वता की प्रसिद्धि, जहाँ वे गौतम ऋषि के नाम से जाने जाते थे, और पुराणों के अनुसार उन्होंने कैलाश पर शिव माहेश्वर स्तोत्र की रचना की थी। और उसके बाद वो प्रभु महावीर से प्रभावित होकर शमन दीक्षा ग्रहण कर शमन गौतम मुनि के रूप में महावीर के प्रथम गणधर कहलाते हैं। वे रिद्धि सिद्धिदायक और लब्धिवान थे। अष्टपद कैलाश की यात्रा करके वहाँ उन्होंने कंडरिक और पुंडरिक चरित्र की रचना की। यह उनकी चरित्र का दूसरा पहलू जो हमें देखने को मिलता है। केवल ज्ञान के बाद भारत और भारत के बाहर वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तब कलिंग जिन की प्रतिष्ठा कर जगन्नाथ स्तोत्र की रचना की थी, और ये उनके चरित्र का तीसरा पहलू। उनके चरित्र की तीनों घटनाएं आदि तीर्थंकर ऋषभदेव से एवं जैन संस्कृति से उन्हें जोड़ती हैं, और इस विषय पर कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रीमान पुराण में जानकारी हमें मिलती है कि कश्मीर देश में भगवान महावीर गए थे। वहाँ पर गौतम स्वामी ने दीक्षा ग्रहण की थी। ये उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है
भगवान महावीर की देशों में सिर्फ क्षत्रिय और अन्य जातियों के लोग भी नहीं, ब्राह्मण ऋषि भी प्रभावित होकर उनके अनुयायी बनने लगे और उन्हें एक नई दिशा मिली, एक क्रांति सी आ गई। और तब घबरा कर पाखंडी लोगों ने महावीर के प्रभाव से जनमानस को भ्रमित करने के लिए उन्हीं के प्रमुख शिष्य प्रथम गंधर्व गौतम का नाम देकर शाक्य मुनि, जिनका उस समय बहुत छोटा संघ था और उनका निर्माण महावीर के 22 वर्ष बाद हुआ था, उनको उनके विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया और वही फिर परंपरा से चला गया। नहीं तो यह कभी भी मान्य नहीं हो सकता कि एक क्षत्रिय राजकुमार को हम ब्राह्मण गोत्र दें। शमन संस्कृति का वास्तविक स्वरूप जैन धर्म के रूप में आज भी भारतवर्ष में विद्यमान है, जबकि भारत के बाहर यह बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रमुख कारण इन जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए भ्रम फैलाया गया और जिसके कारण बड़े बड़े इतिहासकार, साहित्यकार, खोजकर्ता भ्रमित हो गए। और मैंने जब हम चाइना में गए तो वहाँ पर मैंने यही देखा कि कहने को हम वो बहुत मूर्तियाँ हैं, लेकिन उनके हाथ में मैंने ओखा देखा और पैनल्स में जो साधुओं के चित्र बने हैं वो भी ओखा लेकर हैं, जो कि बहुत उसमें नहीं होता, बहुत साधु नहीं लेते, सिर्फ जैन साधु लेते हैं। और वहाँ पर हमने सिक्किम में बहुत सी गुफाएं देखी जहाँ पर अनेक तीर्थंकर प्रतिमाएं थीं और जिनको की बौद्ध कहा गया। और सिक्किम क्षेत्र में संप्रति ने वहाँ पर अनेकों मंदिर का निर्माण किया था, क्योंकि वहाँ का जो खोतान शहर है उसको अशोक के पुत्र पुणाल ने बसाया था। और इसका वर्णन हमें सिर्फ जैन साहित्य में नहीं है, चाइनीज साहित्य में भी मिलता है। और वहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं जिनके नीचे जिन लिखा हुआ है और उस सब को M.A. स्टेन और एलिजाबेथ जैसे खोजकर्ता जिन संस्कृति से जो अनभिज्ञ है उन्होंने जैन उनको बुद्ध धर्म के साथ जोड़ दिया है। और कश्मीर के इतिहास में लोगों ने यही किया, जहाँ जहाँ जैन शब्द था उसको बौद्ध बना दिया, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है जो इस कथन से परिलक्षित होती है कि according to the Jains, the chief disciple of the Tirthankara Mahavir was called Gautam Swami or Gautam Indrapati. Well, Brooks says in his essay that in the Kalpasutra and in other books of the Jains, the first of Mahavira's disciple is mentioned under the name of Indrapati. But in the inscription under that of Gautam Swami, the names of the other 10 precisely agree, where it is to be concluded that Gautam, the first one of the first list, is the same with the Indrapati, first of the second list. It is certainly probable, as remarked by Dr. Hamilton and Major Delamine, that Gautam जो जैन 24वें तीर्थंकर महावीर के शिष्य थे और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते शाक्य मुनि, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी थे। और ये बहुत ही स्पष्ट होता है इन सब बातों से। हजारों की संख्या में प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियाँ भारत के बाहर विदेशियों द्वारा ले जाई गई और जो उनके देशों के ग्रंथगारों में आज भी पड़े हुए हैं। और उनके अध्ययन से हमें सही तथ्यों को सामने लाकर उनके परिप्रेक्ष्य में इतिहास का सही मूल्यांकन कर उनको पुनः लिखा जाना चाहिए। और इस संदर्भ में डॉक्टर शिवानंद पिल्लई का यह कथन जो उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को लिखा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। According to India's Brahmosman, Dr. Shivanand Pillai's address to the Indian President Dr. APJ Abdul Kalam, other countries preserve their history well. Here we need a certificate from the West to show what is originally ours. It is time to be proud of our heritage and rewrite the textbook. જય જીવી. ડૉક્ટર લતાબેન બોથરાએ આજના પરીક્ષણના બીજા દિવસે અત્યંત મહત્ત્વના વિષય પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. એમનો વિષય હતો ગૌતમ ગણધર કે બુદ્ધ.
જૈન સાહિત્યના પુસ્તકો જે છે એમાં બહુ સ્પષ્ટપણે ગૌતમ પ્રભુને આપણે ગણધર ગૌતમને ગૌતમ સ્વામી તરીકે ઓળખીએ છીએ, પરંતુ જૈન સિવાયનું જે કેટલુંક સાહિત્ય છે, ત્રિપિટક સાહિત્ય અને બીજા કેટલાક સાહિત્ય અને ઇતિહાસના કેટલાક વિદ્વાનોએ ક્યાંક એ પ્રકારનું આલેખન કર્યું છે કે ગણધર ગૌતમ એ જે બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપક છે એની સાથે એને ભેળવ્યા છે. અને આવી કેટલીક ભેળસેળ જ્યારે અન્ય જૈન ધર્મીઓમાં થઈ હોય, જૈન સિવાયના અન્ય ધર્મીઓ પુસ્તકમાં આ થયું હોય, ત્યારે શા માટે આવું થયું? એ થવાના કારણો કયા હતા? પ્રભુ મહાવીરના પ્રથમ ગણધર ગૌતમ સ્વામી અને બીજી તરફ બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપક ગૌતમ, આ બંનેનું એક જ નામ એક જ સમય કઈ રીતે થયું? શા માટે જે જૈન ધર્મના પરંપરાના જાણકાર નથી એવા કેટલાક લોકોએ બૌદ્ધ ધર્મના પુસ્તકોમાં મહાવીર સ્વામીના જ પ્રભુ ગણધરને, ગૌતમ સ્વામી ગણધરને એમના ગૌતમ ગણાવ્યા? તો આવા કેટલાક મહત્વના વિષયો ઉપર આપણા સંશોધક લતાબેન બોથરાએ ખૂબ સંશોધન કરીને પોતાની વાત આજના વ્યાખ્યાનમાં પ્રસ્તુત કરી છે. જૈન ધર્મમાં અભ્યંતર તપ અંતર્ગત સ્વાધ્યાય એ બહુ જ મહત્વની બાબત છે. જૈન સંશોધક એ સતત સ્વાધ્યાય કરતો હોય છે અને એ રીતે હું લતાબેનને ખરા અર્થમાં તપસ્વી કહું છું, કારણ કે કલકત્તાના એક ખૂણે બેસીને સતત નિરંતર જે જૈન સાહિત્યનો અભ્યાસ, જૈન સ્થાપત્યનો અભ્યાસ, જૈન ઇતિહાસનો અભ્યાસ તેઓ કરતા હોય છે, પરંતુ સાથે સાથે ધર્મની જે અન્ય ધર્મોની જે પરંપરા છે એના જાણકાર હોવાને કારણે એનો અભ્યાસ કરતાં કરતાં ત્યાં જે કેટલાક મુદ્દાઓ આલેખાયા છે એ શા માટે ભિન્ન પડે છે આપણાથી, કઈ ખોટી માન્યતાઓ, કયા ખોટા ભ્રમણાઓ ત્યાં છે અને એનો ઉકેલ તેઓ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ખૂબ જ પાયાનું સંશોધનનું કામ લતાબેનના અભ્યાસમાં હંમેશા રહ્યું છે અને એવા તપસ્વીએ આજે આપણે ત્યાં બીજા દિવસે એક અત્યંત મહત્વનું વ્યાખ્યાન આપ્યું. આ વ્યાખ્યાનને 3 રીતે આપણે વિભાજીને જોઈ શકીએ છીએ. એક તો આરંભમાં મહાવીર સ્વામી અને ગૌતમ સ્વામીનું મિલન, ત્યાર પછી ગૌતમ સ્વામી જે અલગ અલગ જગ્યાએ ગયા અને મહાવીર પ્રભુના નિર્વાણ બાદ અલગ અલગ જગ્યાએ ગયા અને એમને જે કેટલીક રચનાઓ કરી છે તે, અને ત્યાર પછી ઇતિહાસના કેટલાક ઉલ્લેખો, ખાસ કરીને ત્રિપિટક સાહિત્ય કે અન્ય ઇતિહાસના કેટલાક ઉલ્લેખો, અને તેમાં જે શાક્ય મુનિની વાત મૂકવામાં આવી છે અને શા માટે મૂકવામાં આવી છે એ વાત પણ એમને પ્રસ્તુત કરી છે. લતાબેનની જે આખી વાત છે એ લતાબેનની વાતમાં તમે જુઓ, આરંભમાં લતાબેન આપણને કહે છે કે ગૌતમ સ્વામી અને પ્રભુ મહાવીરનું મિલન કઈ રીતે થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્દ્રભૂતિ એ વેદના ખૂબ મોટા જાણકાર હતા અને યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા, અને એ સમયે પ્રભુ મહાવીરનું બાજુના જ એક સ્થળ ઉપર પ્રભુની વાંચના હતી અને અનેક દેવો ત્યારે આવી રહ્યા છે, અને ત્યારે ઇન્દ્રભૂતિને એવું લાગે છે કે બધા એમને ત્યાં આવી રહ્યા છે, પણ ત્યારબાદ ખ્યાલ આવે છે કે બધા જ પ્રભુ મહાવીરની દેશના સાંભળવા માટે આવી રહ્યા છે, અને ત્યારે ઇન્દ્રભૂતિ ત્યાં જાય છે. અહંકારી ઇન્દ્રભૂતિ એ હોય છે, અને ત્યાં ગયા પછી એ એક નમ્ર શિષ્ય બની જાય છે, અને એ ત્યારે પ્રભુ મહાવીર એમને ગૌતમ કહીને બોલાવે છે. આપણે સૌ આ ઘટનાથી પરિચિત છીએ, અને આ ઘટનાથી એક આરંભ કરે છે લતાબેન પણ પોતાની વાતનો, કે આ પ્રભુ મહાવીરનું અને ગૌતમ સ્વામીનું, આપણા ગણધર ગૌતમ સ્વામીનું પ્રથમ મિલન. ત્યારે પ્રભુ એમને ગૌતમના નામે બોલાવે છે. એમનું નામ ઇન્દ્રભૂતિ હતું, પરંતુ પ્રભુએ એમને ગૌતમ, જે એમના ગોત્રનું નામ હતું, એ નામે બોલાવ્યા છે. હવે એ જ સમયે બૌદ્ધ ધર્મના જે સ્થાપક છે શાક્ય મુનિ, એમને પણ ગૌતમ કહીને બોલાવવામાં આવે છે. તો લતાબેને બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન મૂક્યો છે કે શાક્ય મુનિનું ગોત્ર તો ગૌતમ પણ નહોતું, તો એમનું ગોત્ર તો આદિત્ય હતું અને તે શાક્ય જાતિના હતા, તો શા માટે એમને ગૌતમ કહીને બોલાવવામાં આવે છે? આ એક મહત્વનો પ્રશ્ન તેઓ મૂકે છે. તેઓ જ્યારે એક વખત જતા હતા અને ત્યારે 4 કે 5 શિષ્યો એમને મળે છે, અને એમાંથી એ શિષ્યો એમને ગૌતમ કહીને બોલાવે છે. હવે એમને આ ગૌતમ કહીને બોલાવવાના કયા કારણો હોઈ શકે? પ્રભુ મહાવીરનો પ્રભાવ એટલો હતો, ગૌતમ સ્વામીનો પ્રભાવ એટલો હતો, અને બીજી તરફ શાક્ય મુનિનો પ્રભાવ પ્રમાણમાં ઓછો હતો, એને કારણે એમની સામે સ્પર્ધા રૂપે કે કયા રૂપે આ ગૌતમ નામ એમને આપવામાં આવ્યું છે, જે એમના ગોત્રનું નામ પણ નથી અને એમનું પણ નામ નથી. તો આ એક મહત્વની બાબત લતાબેને આજે પોતાના વ્યાખ્યાનમાં આપણી સમક્ષ મૂકી છે.
બીજી એક બાબત લતાબેન મૂકે છે કે ઇતિહાસમાં એવું પણ અનેકવાર બન્યું છે કે નાલંદા હોય કે વૈશાલી હોય કે રાજગ્રહી નગરી હોય, ત્યાં બંને એ જગ્યાએ બંને ગૌતમો હોય અને છતાં પણ એ લોકોનું એકબીજા સાથે મિલન ન થયું હોય. તો આ પણ એમને એક વાત અહીંયા મૂકેલી છે. હવે તેઓ એમ કહે છે કે બૌદ્ધ સાહિત્યનો જે આખો અભ્યાસ છે અને બીજી તરફ જૈન સાહિત્યનો અભ્યાસ છે, એ અભ્યાસમાં અને એ સાહિત્યના પુસ્તકોમાં રાજાઓના નામ સમાન આવે. તો એવું ઘણીવાર બનતું હોય કે જ્યારે રાજા હોય એ એમના પ્રદેશમાં જ્યારે પણ કોઈ મોટા મુનિ આવે ત્યારે બધાને જ પગે લાગવા જતા હોય. એમના માટે એમને એક વિશેષ ગુરુ હોય પણ એ પગે લાગવા માટે બધાને જ જતા હોય. તો એને કારણે એ સાહિત્યના પુસ્તકોમાં એ રાજાનું નામ કોમન આવવું જરૂરી સહજ છે. અને એ સહજ હોવાને કારણે એને કોઈ બીજો મુદ્દો મુશ્કેલી થાય છે એવું નથી. આ એક મુદ્દો એમને મૂક્યો છે. ત્યાર પછી બીજી પણ એક વાત મૂકે છે કે કોઈ પણ એક ગામમાં જ્યારે એક મોટા આચાર્ય ભગવાનનું ચોમાસું હોય ત્યારે એમના શિષ્યો આજુબાજુના પ્રદેશમાં વાચના આપતા હોય. એટલે પ્રભુ મહાવીરનું ચોમાસું હોય ત્યારે ગૌતમ કે સુધર્મા સ્વામી આજુબાજુ વાચના આપતા હોય, વ્યાખ્યાનો આપતા હોય, ને એ સહજ બાબત છે. તો એને કારણે ગૌતમ સ્વામી પ્રભુ મહાવીરની સાથે જ્યારે વાચના આપી રહ્યા છે ત્યારે એ બૌદ્ધ ધર્મના ગૌતમ છે એવું માનવાને પણ કોઈ આવશ્યકતા નથી. આ મુદ્દા પછી એક મહત્વની વાત એમને અશોકના શિલાલેખનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે અશોકના શિલાલેખમાં જે ઉલ્લેખ થયો છે એ શાક્ય મુનિનો ઉલ્લેખ છે કે ગૌતમ સ્વામીનો, એ પણ એક મહત્વની વસ્તુ છે અને એના પ્રત્યે પણ એમને આપણું ધ્યાન દોર્યું છે. પોતે ત્રિપિટક સાહિત્યનો અભ્યાસ કર્યો છે. લતાબેને એ વાત કરી અને પોતે ત્યાં ગયા અને એમને જે એ બૌદ્ધ સાહિત્યનો અભ્યાસ કર્યો તો એ બૌદ્ધ સાહિત્યના અભ્યાસ દરમિયાન એમને એક વાત એ પણ કરી કે એ પુસ્તકોમાં ગૌતમ ભગવાનને જે સિદ્ધાર્થ કે ગૌતમ કે પછી શાક્ય મુનિ જે ગૌતમ છે એમાં ગૌતમને 25મા તીર્થંકર કહેવામાં આવ્યા છે. હવે એ કહે છે કે મારી પૂર્વે 24 તીર્થંકરો થઈ ગયા અને 24 તીર્થંકરોમાં આદિનાથ અને મહાવીર આદિ નામો પણ આવે છે. તો એ કે આ કયા અને ત્યાં પછી બૌદ્ધમાં એવી પરંપરા પણ છે કે દરેકને બુદ્ધ કહેવાનું. અને લતાબેન કહે અમે કે લાફિંગ બુદ્ધા અને આ પ્રકારના અલગ અલગ જે બુદ્ધા છે તો કે બૌદ્ધ કહેવાની ત્યાં એક પરંપરા છે. હવે એ પરંપરાને કારણે આ કહેવામાં આવ્યું છે એ પણ એક પ્રશ્ન અહીંયા એમને મૂકેલો છે. લતાબેને ઇતિહાસના અલગ અલગ અભ્યાસો કર્યા અને એ અભ્યાસોમાંથી એમની સામે એક વાત આવી છે કે ઘણા સ્કોલર એવા પણ હતા જેમને બહુ સ્પષ્ટ રૂપે કહ્યું છે કે આ શાક્ય મુનિ છે અને ગણધર ગૌતમ એ પ્રભુ મહાવીરની સાથેની પરંપરાના છે અને એમનો પાર્શ્વનાથની પરંપરા સાથે પણ જે સંબંધ હતો એના વિશે પણ વાત છે, પરંતુ આ બંને સંપૂર્ણપણે જુદા છે. પરંતુ બૌદ્ધ સાહિત્યમાં આ જે એક મોટી મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે તો એ શા માટે થઈ છે અને એનો અભ્યાસ આગળ જતાં જે એમને પણ કર્યો છે તો એ લોકો એ ભ્રમને જ લઈને આગળ ચાલે છે અને તેને કારણે ઇતિહાસ આગળ જતાં ફરી પાછો ખોટો પડે છે. તો લતાબેન કહે છે કે અત્યારે એ જાગૃતિની બહુ જ મોટી આવશ્યકતા છે. તેઓ એવા એક સંશોધક છે કે માત્ર પુસ્તકોનો આધાર નથી લેતા. તેઓ એ સ્થળે જાય છે, એ સ્થળે જઈને એ સ્થળોની બધી તપાસ કરે છે. જ્યારે તેઓ અષ્ટાપદ પર ગયા હતા તો અષ્ટાપદમાં પણ પોતે જઈને એમને જોયું તો અષ્ટાપદનું એમનું જે સંશોધન છે એ પણ જૈન શાસન માટે કરેલી બહુ જ મોટી સેવા છે. તો ત્યાં પણ એમને પ્રભુ આદેશ્વર દાદાના જે નિશાનીઓ કે આદિ જોવા માટે પોતે ગયા હતા. તો એ રીતે બૌદ્ધ સાહિત્યના અભ્યાસ માટે જ્યારે તેઓ ચાઇના ગયા અને એમને કહ્યું કે એમને જે ત્યાં કેટલીક મૂર્તિઓ આદિ જોઈ તો એ મૂર્તિઓ જે સાધુ ભગવંતોની મૂર્તિ હતી એમના હાથમાં પણ ઓઘો હતો. તો ઓઘાની પરંપરા જે છે એ બૌદ્ધમાં નથી. તો પછી એ સમયે સંપ્રતિ રાજાના સમયે ત્યાં જે આપણો એક આખો વિસ્તાર થયો હતો એને પરિણામે પણ હોઈ શકે. એક બીજી મહત્વનો મુદ્દો લતાબેને આજે મૂક્યો છે અને આપણે ખાસ યાદ રાખવો જોઈએ કે પ્રભુ મહાવીરના નિર્વાણ પછી ગૌતમ સ્વામી જાય છે અને ગૌતમ સ્વામી જ્યારે અષ્ટાપદ ગયા છે અને ત્યાં જગન્નાથ ચરિત્ર લખે છે જે આદેશ્વર દાદાનું ચરિત્ર છે અને આજે પણ ત્યાં જે પૂજા થાય છે એ પૂજા જૈન પરંપરા પ્રમાણે પૂજા થાય છે. તો એ ચોક્કસપણે ત્યાં જૈનના સંકેતો રહેલા છે અને એમ કહે છે કે ગૌતમ સ્વામીએ જ ત્યાં આદેશ્વર દાદાની સ્થાપના કરી હોય એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. ઇતિહાસના કેટલાક ગ્રંથોમાંથી એમને એવી પણ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે કે ત્યાંથી ગૌતમ સ્વામી સ્કેન્ડેલવિયા નામના જે પ્રદેશો છે એ તરફ પણ ગયા હતા.
એમની પાસે સિદ્ધિ હતી, આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ. તો ઇતિહાસનું સંશોધન કરતાં કરતાં આજે ગૌતમ ગણધરને જ્યારે બુદ્ધ ગૌતમ તરીકે ઓળખાવાના પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે ત્યારે એ કહે છે કે એ શાક્ય મુનિ હતા. અને એ બંને બહુ જુદી પ્રતિભા છે. શાક્ય મુનિની પ્રતિભા પ્રમાણમાં ઘણી ઓછી હતી અને પ્રભુ મહાવીરની પ્રતિભા ઘણી વધારે પ્રભાવિત હતી, પરંતુ સામે એક તુલનાના સંદર્ભે અને સ્પર્ધાના સંદર્ભે આ વાત મૂકવામાં આવી હોવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. અને પોતાના આ સંશોધન દ્વારા એમને આજે એક જૈન સમાજને પણ સંશોધનનો અને સ્વાધ્યાયનો વિષય આપ્યો છે કે આપણે માત્ર જૈન સાહિત્ય અને જૈન ધર્મના પુસ્તકોનું જ્યારે વાંચન કરીએ છીએ ત્યારે સમગ્ર ભારતીય પરંપરા અને અન્ય ધર્મની પરંપરાનો જો અભ્યાસ કરીએ કે ભારતની બહારની જ્યારે સાહિત્ય પરંપરાનો અભ્યાસ કરીએ ત્યારે આપણને અનેક આવા સંદર્ભો મળે અને એ સંદર્ભો ઉકેલતા ઉકેલતા આપણે ઇતિહાસના સંશોધન દ્વારા એક પ્રકારનો સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ અને ઇતિહાસની રહેલી ભૂલોને પણ આપણે સુધારતા હોઈએ છીએ. આપણા ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ કલામજીને પણ ફોરેનના એક સ્કોલરે પત્ર લખ્યો હતો કે ઇતિહાસમાં રહી ગયેલી આવી કેટલીક ભૂલોને હવે આપણે સુધારી લેવાની જરૂર છે, કારણ કે એ પાઠ્યપુસ્તકમાં ફરી ફરી રિપીટ થાય છે અને પરિણામે આપણે અત્યારે પણ જે જનરેશન છે એની સુધી ખોટો ઇતિહાસ પહોંચી રહ્યો છે. डॉक्टर लताबेन, आपने जो बात यहाँ पर प्रस्तुत की है वो बात श्री मुंबई जैन युवक संघ के मंच से प्रस्तुत हुई है, उसका हमें आज एक गौरव है. भद्रंकर विजय ज्ञान दीपक अवार्ड आज आपको प्राप्त हुआ है और यहाँ जो भी लोग सुन रहे हैं वो सब इस बात से बहुत ही हर्षित भी है और बहुत ही उनको संतोष हुआ है कि ऐसी जो एक स्कॉलरली लेडी है हमारे जैन शासन की, उसको यथा योग्य रूप में ये अवार्ड मिला है. और इस बात का हमें आनंद है और हमारा मंच और हमारी संस्था बहुत ही प्रसन्न है कि आपने अपने संशोधन की बात रखने के लिए इस मंच को पसंद किया और स्वीकार भी किया है. मैं तहे दिल से अपना जितना भी आनंद व्यक्त करूं वो कम है. आप इसी तरह आपके संशोधन का लाभ हमें देते रहिएगा. कोई पण जाहिर सामाजिक के शैक्षणिक संस्था एनी तेजस्विताना मूळमां एमां વાલોડ વ્યારાના લગભગ 12 જેટલા યુવકો જે બહુ જ બુદ્ધિમાન હતા, સંયોજક શક્તિવાળા હતા, આયોજક શક્તિવાળા હતા અને જેમની પાસે આદિવાસી સેવાનું સ્વપ્ન હતું. એ સૌએ ભેગા મળીને આખા પ્રદેશના સર્વાંગી વિકાસ માટેનું જે સ્વપ્ન સેવ્યું એને અત્યારે લગભગ 60 વર્ષ થયા. એના જે વેડછી પ્રદેશ સેવા સમિતિના 2 મુખ્ય આગેવાનો તે બાબુભાઈ શાહ અને ભીખુભાઈ વ્યાસ, એમની સામે એક એવો નકશો હતો કે શિક્ષણ, સહકાર, સંગઠન, રોજગારી, લોકજાગૃતિ આ બધા જ ક્ષેત્રોમાં કામ કરવું. મુખ્ય માધ્યમ શિક્ષણ, પણ માત્ર શિક્ષણ નહીં. અને આ બધી પ્રવૃત્તિ રૂપે આ મૂલ્યને, અને એમાંય આદિવાસી વિસ્તારમાં આજથી 60 વર્ષ પહેલાં આ ઘણું કઠણ હતું પણ એમણે કામ કર્યું. બાબુભાઈ શાહના અવસાન પછી અત્યારે તેમના પત્ની તરલાબેન શાહ વેડછી પ્રદેશ સેવા સમિતિનું માર્ગદર્શન કરી રહ્યા છે. માત્ર ચાલુ શિક્ષણ નહીં પણ શિબિરો, તાલીમ કાર્યક્રમો,
સંગઠન આ બધા દ્વારા આદિવાસી, અને આ પણ આખો વિસ્તાર આદિવાસી વિસ્તાર છે, એના વિદ્યાર્થીઓનું સશક્તિકરણ કેમ કરવું, એનામાં આત્મવિશ્વાસ કેમ પેદા કરવો, એનામાં અનેક પ્રકારની જે કુશળતા, સર્જનાત્મકતા અને કૌશલ્યો છે એને કેમ પ્રગટ કરવા, એ માટેનું કામ વેડછી પ્રદેશ સેવા સમિતિના માર્ગદર્શન નીચે, સંચાલન નીચે ચાલતી શાળાઓમાં થઈ રહ્યું છે. એટલે એમણે છાત્રાલયવાળી શાળા રાખી, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ 24 કલાક રહેતા હોય, જ્યાં એમનો સર્વાંગી વિકાસ થતો હોય, માત્ર એક અભ્યાસ પૂરતો નહીં. આ કામ વેડછી પ્રદેશ સેવા સમિતિએ કર્યું છે, અને એના સંચાલનમાં આ સૌ નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તાઓને કારણે એક વિશિષ્ટ અને નોખી ભાત પાડનારા આ બધા વિદ્યાલયો બની ગયા છે. એ ખૂબ મોટી આનંદની વાત છે. એટલે આવી સંસ્થાઓ જેના મૂળમાં તપ અને નિષ્ઠા હોય, એવી એક સંસ્થા તે વેડછી પ્રદેશ સેવા સમિતિ છે. એનું ગૌરવ એ પ્રદેશમાં જે દીર્ઘકાળથી એમણે કામ કર્યું એ સૌને છે, ઉપરાંત એમને પરિચય, એમને ઓળખતા હોય એવા સૌના એ પણ એમના કામની નોંધ લીધી છે, એમના કામનું ગૌરવ થયું છે, એમના કામ માટે સૌને રાજીપો છે. આભાર. શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘની 89મી પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળાના ગૌતમ ગણધર યા બુદ્ધ વિષય ઉપર પોતાનું સંશોધનાત્મક વ્યાખ્યાન આપનાર ડૉક્ટર લતાબેન બોત્રાનો હું બકુલ ગાંધી શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ વતી આભાર માનું છું. લતાબેને આટલો સમય ફાળવી પોતાનું રસપ્રદ એકેડેમિક સંશોધન અહીં વ્યાખ્યાન રૂપે પ્રસ્તુત કર્યું. આ ઉપરાંત ભક્તિ સંગીતથી બેજવડા શ્રી જોનીભાઈ શાહનો આભાર માનું છું. શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘે અનુકંપા પ્રોજેક્ટ હેઠળ વેડથી પ્રદેશ સેવા સમિતિ વાલોડની પસંદગી કરી છે. હું સૌને વિનંતી કરીશ કે પોતાના દાનનો પ્રવાહ ઉદાર હાથે વહાવે અને આપણી અનુકંપાને સ્પંદિત કરે. સંઘની બેંકની વિગત આપને સ્ક્રીન પર મળી રહે છે. જય જિનેન્દ્ર.